اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ محمد داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے علی کے 18 بیٹے، علی ہیں علی کے 18 بیٹے، علی پر سبھی میں علمدار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہیبت بھی ہے، ہر ادائیں کی عمران کا عکس ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، نخل عظمت کا شیریں ثمر ہے یہی، عصمتوں کے صدف کے گوہر ہیں یہی، عصمتوں کے صدف کے گوہر ہیں یہی، نور کی سدرۃ المنتہا ہے یہی، ہاشمی آسماں کے قمر ہیں یہی، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، حسن کا ایسا مینار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ، راستے کے لیے رہنما چاہیے، راستے کے لیے رہنما چاہیے، خلد کے راستوں کو جو ہے جانتا، اس ولی کا ہمیں آسرا چاہیے، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ہم اس کے بعد درخواست کرتے ہیں نذیر بھائی سے کہ وہ مرثیہ سنائے ہمیں جی، بسم اللہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔
اللہم صلی علی محمد وعلی. نذیر بھائی اس وقت یوکے سے آن لائن ہے. آپ کون سے شہر سے ہیں؟ جی یوکے لندن سے ہے. لندن سے جی. جی خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہم بے تابی سے منتظر ہیں کہ آپ ہمارے لیے مرثیہ پڑھیں. جی. سکائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. سکائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا تم بھی نہیں ہم کو ٹھکرانا ہم دنیا کے ٹھکرائے ہیں. سکائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. اب سارے سہارے ٹوٹ چکے ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے. اب سارے سہارے ٹوٹ چکے ہمیں اپنے پرائے لوٹ چکے. تم اپنے پناہوں میں لے لو تم اپنی پناہوں میں لے لو. ہم غم سے بہت گھبرائے ہیں. سکائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. اشکوں کی زباں پہچانتے ہو جو دل میں ہے وہ جانتے ہو. اشکوں کی زباں پہچانتے ہو جو دل میں ہے وہ جانتے ہو. ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو ہم کہہ نہیں سکتے تم سن لو. بس ہاتھوں کو پھیلائے ہیں. سکائے حرم رکھ دینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. ہر سونی گودی کھل جائے ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے. ہر سونی گودی کھل جائے ہر بیٹی کو رشتہ مل جائے. ان چہروں کو رونق دے دو ان چہروں کو رونق دے دو جو غم کے سبب مرجھائے ہیں. سکائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے. مولا 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 تم باب حوائج ہو روزے پہ انہیں بھی بلوا لو. مولا تم باب حوائج ہو روزے پہ انہیں بھی بلوا لو. غربت کے سبب جو آ نہ سکے غربت کے سبب جو آ نہ سکے ہم ان کے عریضے لائے ہیں. سکائے حرم رکھ لینا بھرم ہم در پہ تمہارے آئے ہیں. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب اس کے بعد میں درخواست کروں گا ڈاکٹر سید ضمیر حسین شاہ صاحب کے سے کہ وہ بھی مرثیہ کی تلاوت فرمائیں. اس سے پہلے کہ وہ تلاوت کریں اپنا تعارف ہی کروا دیجیے گا تاکہ جو ہے جو مومنین یہاں موجود ہیں وہ آپ کے اس سے استفادہ کرنے سے پہلے آپ کے متعلق جو ہے جان لیں. جناب بہت شکریہ آغاز صاحب.
میں سید ضمیر حسین شاہ پورٹلینڈ امریکہ سے اس وقت موجود ہوں، اور میں تمام مومنین کو تعزیت پیش کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کی۔ اور آج میں ایک نوح آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، جو کہ ایک ہندو شاعر تھا، اس نے 150 سال پہلے یہ نوح لکھا جس کا نام تھا چنو لال دلگیر۔ آپ نے کئی دفعہ ریڈیو ٹی وی پہ سنا ہوگا اور سوشل میڈیا پہ بھی یہ سنا ہوگا، لیکن میں اپنی آواز میں اس کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ برادر ہوا برباد الہی، کیا آئی تباہی، اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھر جا کے کسے دیکھیں گی قاسم ہے نہ عباس، اکبر سے بھی ہے آس، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پہ ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائیں گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گر کو کلیجہ، یاد آؤگے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بے پردہ ہوئی قید بھی خاہر نے اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا ابھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب،
घबराएगी ज़ैनब। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मोहम्मद। इसके बाद कोई और पढ़ना चाहता है? अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता डॉक्टर अलीरज़ा से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो इससे पहले कि मैं मजलिस का आगाज़ करूं वो अपनी तरफ से इजहार अकीदत फरमाएं। डॉक्टर साहब थोड़ा सा रुक जाए, मैं यहाँ इब्रार शाह साहब के बच्चे आए हैं नहीं आए? नहीं है मेरे ख्याल में जी। और कोई पढ़ना चाहता है? नहीं पढ़ना चाहता? जी डॉक्टर साहब वाले मोहम्मद। खून से चिरागे दीन जलाया हुसैन ने, खून से चिरागे दीन जलाया हुसैन ने, रस्म वफा को खूब निभाया हुसैन ने। खुद कोई कतरा पानी न मिल सका लेकिन करबला को खून पिलाया हुसैन ने। ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, ऐसी नमाज कौन पढ़ेगा जहान में, कि सजदा जो किया तो सर न उठाया हुसैन ने। सब कुछ खुदा की राह में कुर्बान कर दिया, असगर सा फूल भी न बचाया हुसैन। नाराए सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फरजहुम। अभी ज़ाहिरन किसी और ने नहीं पढ़ना, तो मैं जो है तकरीबन 20 मिनट आप खिदमत में रहूँगा। एक सलवात पढ़ें बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युसीना अमाउलादून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुश्तहिदून अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन मअदूद वला नअतुन मौजूद वला अजलुन ममदूद अल्लज़ी फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशर रियाहा बिरहमतिही थुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वाला इतरतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुद दाइम अला आदाइहिम अजमईन मिनल आने इला लिक़ाए यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वश्शम्सि वद्दुहाहा वल कमर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा। सलावत पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हमने टॉपिक शुरू किया है इमाम हुसैन और कुरान, और ख़ास तौर पर हमने फोकस रखा है इस बात पर कि इमाम हुसैन जब मदीने से चले हैं करबला तक, जो खुतबे इमाम ने इरशाद फरमाए हैं उसमें इमाम ने जो आयात कुरानी का इस्तेमाल किया, आयात कुरानी को कोट किया है, उनका बयान। हम इससे पहले कि इस मौजू में दाखिल हों, हमने खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और कुरान का जो ताल्लुक है उसको बयान किया आपके सामने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान की कदर, मंजिलत, मकाम जानते थे, क्योंकि नातिक़ कुरान थे, क्योंकि मुहाफ़िज़ कुरान थे, क्योंकि कुरान इनके घर में नाज़िल हुआ, कुरान इनके नाना पर नाज़िल हुआ। उनसे बेहतर कुरान को कोई नहीं जानता। एक दफा का जिक्र है कि एक आदमी था अब्दुर्रहमान सलमी, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों में से किसी एक बच्चे को सूरह फातिहा पढ़ाई। फिर अर्ज करूंगा कि आइमा का जो अमल होता है बाज़ औक़ात उम्मत को, मुसलमानों को समझाने के लिए होता है, जरूरी नहीं है कि वो अमल उनकी जरूरत हो। इमाम के बच्चों में से किसी एक बच्चे को सूरह फातिहा सिखाई तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अब्दुर्रहमान सलमी को 1000 दिनार, लिबास और अशरफियां दी। बाद लोगों ने एतराज किया कि यब्ना रसूल अल्लाह, ऑब्जेक्शन किया कि यब्ना रसूल अल्लाह, आपने सिर्फ एक सूरह फातिहा के बदले में इतना इनाम उसको दे दिया है,
اتنے اس کو دینار دے دیے، اتنے اشرفیاں دے دیے، اتنے لباس اس کو دے دیے. امام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی قدر اس سے زیادہ ہے. یعنی ایک تو امام اس اپنے عمل کے ذریعے، عمل مبارک کے ذریعے استاد کی قدر، ٹیچر کی منزلت، ٹیچر کا مقام بتانا چاہتا. اور دنیا میں وہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں جو استاد کی قدر کرتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من علمنی عرفا قد سیرنی عبدا. مجھ علی کو کوئی آدمی اگر ایک حرف سکھائے تو گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا. پھر عرض کروں گا کہ ائمہ کی احادیث بعض اوقات امت کو سکھانے کے لیے ہوتی، امت سے عمل کروانے کے لیے ہوتی. کتنا بڑا مقام ہے اسلام میں استاد کا، ٹیچر کا. اور استاد کو اسلام میں باپ کا درجہ دیا گیا، چاہے استاد کافر ہی کیوں نہ ہو. کہتے ہیں کہ 3 افراد آپ کے باپ کا درجہ رکھتے ہیں. ایک آپ کے حقیقی والد جن کے توسط سے آپ دنیا میں آئے، دوسرا آپ کے سسر جس نے آپ کے آدھے دین کو بچایا ہے اپنی بیٹی دے کر، تیسرا استاد. اور استاد کا بڑا کمال ہوتا ہے، انسان کی تقدیر تبدیل کر دیتا ہے استاد. انسان کو کفر سے نکال کر کے اسلام کی طرف لے آتا ہے، گمراہی سے نکال کر کے ہدایت کی طرف لے آتا ہے. 2 مثالیں عرض کروں. یزید کا بیٹا کیوں اچھا ہو گیا، کیوں نیک ہوا؟ معاویہ ابن یزید. ہمارے پاس 2 معاویہ ہیں، ایک چھوٹا معاویہ ایک بڑا معاویہ. چھوٹا معاویہ کیوں اچھا نکلا یزید کا بیٹا؟ کہ اس نے تخت کو ٹھکرا دیا، کیونکہ اس کا استاد اچھا تھا. اس کو 2 خوبیاں ملی ہیں جس کی وجہ سے اچھا ہو گیا. یزید کا بیٹا ہونے کے باوجود نیک بن گیا. یزید کا بیٹا ہونے کے باوجود خدا نے اسے اہل بیت کے راستے کے لیے چن لیا، کیونکہ اس کا استاد اچھا تھا، ٹیچر اس کا اچھا تھا. ٹیچر نے اسے سکھایا تھا اہل بیت کا احترام. دوسرا اس کی ماں اچھی تھی. یزید جیسا برا باپ ہونے کے باوجود اتنا اچھا نکلا ماں کی وجہ سے، استاد کی وجہ سے. دوسرا عمر بن عبدالعزیز. اموی خاندان میں کوئی اچھا آدمی نہیں گزرا، ایک سے ایک بڑھ کر ہے، ظلم میں، زیادتی میں، جہالت میں. لیکن عمر بن عبدالعزیز اچھا نکلا، کیوں؟ اس کا ٹیچر اچھا تھا. بس اچھا ٹیچر اگر انسان ہو تو وہ ٹیچر انسان کو برائی سے نکال کر اچھائی کی طرف لے آتا ہے. تاریخ. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان کا اپنا کردار ہے. آباء و اجداد کی وجہ سے نہ کوئی بخشا جائے گا نہ کوئی پکڑا جائے گا. آباء و اجداد کی وجہ سے نہ کسی کو سزا ملے گی نہ کوئی جنت میں جائے گا، اپنے عمل کی وجہ سے. ایک اور مثال عرض کروں. محمد بن ابی بکر ابو بکر کا بیٹا ہے، لیکن اتنا عظیم ہو گیا کہ امیر المومنین جیسی عظیم ہستی ارشاد فرماتی ہے محمد ابنی من صلب ابی بکر. محمد صلبی لحاظ سے ابو بکر کا بیٹا ہے لیکن تربیت کے لحاظ سے میرا بیٹا ہے. اور اتنا عظیم ہو گیا محمد بن ابی بکر کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ مجھے فخر ہے کہ میرے نانا محمد ہیں، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ بیٹی تھی قاسم کی. قاسم بیٹے تھے محمد بن ابی بکر کے، اور قاسم بچپنا تھا جب ان کے والد شہید ہوئے مصر جاتے ہوئے راستے میں. بس انسان کی جو تربیت ہے، اس کا معلم کا اچھا ہونا، اس کی تربیت کا اچھا ہونا انسان کی زندگی میں اثر رکھتا ہے. اور انسان کا اپنا عمل ہے، آباء و اجداد کی وجہ سے نہ کوئی پکڑا جائے گا نہ کوئی بخشا جائے گا. ایک منفی مثال کے ذریعے بھی عرض کروں. ابو لہب سگا چچا ہے پیغمبر کا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی اس میں ڈاؤٹ نہیں کر سکتا. جس طرح رشتے کے لحاظ سے جس طرح ابو طالب ہیں، جس طرح عباس ہیں، جس طرح حمزہ ہیں، اس طرح سگا چچا. لیکن قرآن نے لعنت کی اس کو. تبت یدا ابی لہب و تب وما اغنی مالہ وما کسب. کیوں؟
अमल पर हो गए, चचा होने के बावजूद जहन्नमी हो गए, चचा होने के बावजूद काफिर करार पड़ा, चचा होने के बावजूद कुरान ने नफरत की। उसके मुकाबले में सलमान फारसी है, पैगंबर से कोई रिश्ता नहीं, पैगंबर से जबान उसकी नहीं मिलती, लहजा नहीं मिलता, पैगंबर से उसका रंग नहीं मिलता, नस्ल नहीं मिलती, कबीला नहीं मिलता, लेकिन इतना अजीम हो गया कि पैगंबर ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान हमारी आले बैत से। अरब अपने हस्ब नसब, कबीले पर, ट्राइब पर क्या फख्र किया करते थे। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, अत्तबाज का ये होता था बैठे बैठे अपने कबीले के अफराद को गिनते गिनते कबीले के अफराद कम पड़ जाते थे, कब्रें गिनना शुरू कर देते कि हमारे कबीले के अफराद ज्यादा है। एक दफा अरब बैठे हुए थे, हर कोई फख्र कर रहा था, मेरा बाप ये था, मेरा दादा ये था, मेरा कबीला ये है, हम जंगजू हैं, सलाशूर हैं। वहां पर किसी ने तंज से सलमान फारसी से कहा आपका कबीला कहाँ का है, कौन है, किधर है, कहां से आए? तो सलमान ने प्यारा जवाब दिया, कहा कि मैं गुमराही में था, खुदा ने मुझे मोहम्मद के तवस्सुत से हिदायत अता की, मैं गुलाम था, खुदा ने मोहम्मद के तवस्सुत से मुझे आजाद किया, मैं कुछ नहीं था, खुदा ने मुझे सब कुछ दे दिया मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से, ये मेरा हस्ब नसब है। फख्र इंसान को अपने किरदार और आले बैत से मुतमस्सिक होने में होना चाहिए कि हमें फख्र है इस बात पर कि हम आले बैत के घराने से मुतमस्सिक हैं। जिस घराने से सलमान मुतमस्सिक होकर सलमान बन गए, अबू जर मुतमस्सिक होकर अबू जर बन गए, मैसम मिकदाद वो अजीम इंसान बन गए। हम भी अपने आप को कहते हैं कि हम आले बैत के मुहब्ब हैं, आले बैत के चाहने वाले हैं, आले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं, लेकिन जब आले बैत के रास्ते में खर्चा करना आए, जान फशानी करने आए, कुर्बानी देनी आए, तो हम पीछे हट जाते। लेकिन वो लोग भी थे जिन्होंने आले बैत से मोहब्बत की है और आले बैत अलैहिस्सलाम के रास्ते में उस मोहब्बत की कीमत चुकाई, जिसमें मैं समय तम्मार है कि आले बैत के रास्ते में जबान उनकी काट दी गई थी, सूली पर लटका दिया, लेकिन उन्होंने आले बैत के रास्ते को नहीं छोड़ा। फराजदार से मैसम ये बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जबान देते हैं, सफ़े बनाओ मुहब्बों के दार से मैसम नमाज इश्क अली की अजान देते। जालिम ने कहा कि हम आपकी जबान काटेंगे, कहा इसके बारे में तो मेरे मौला ने पेशनगोई की थी। अमीरुल मोमिनीन ने बताया था कि मैसम आपको इस दरख्त के साथ लटकाया जाएगा मेरी मोहब्बत में, तो रोजाना जाकर उस दरख्त को पानी दिया करते थे। और इनकी दुकान थी खजूरों की, इसलिए इन्हें मैसम तम्मार, तम्र कहते हैं अरबी में खजूर को, तम्मार यानी खजूरें बेचने वाला, खजूरें रखने वाला, बेचने वाला। एक दफा इनको कोई काम पेश आ गया तो अमीरुल मोमिनीन वहां से गुजर रहे थे, यहाँ तशरीफ फरमा थी, कहा कि मौला आप मेरी दुकान पर बैठें ताकि मैं अपने काम से फारो होकर आ जाऊं। अमीरुल मोमिनीन बैठे थे तो एक गाहक जो कि देख रहा था कि आज खुद दुकानदार नहीं है, असली दुकानदार, उसने कहा कि मौके से फायदा उठाएं। उसने मौके से फायदा उठाते हुए खोटे पैसे ला कर दे। पुराने जमाने में हुआ करते थे पाकिस्तान में ना खोटे पैसे, ये वो 5 आने होते थे, 5 पैसे होते थे, 1 आना होता था, खोटे पैसे। उसने मौके से फायदा उठाकर जेली नोट लाकर दे दिया अमीरुल मोमिनीन, और अमीरुल मोमिनीन ने खुजरें उठाकर दे दी। बड़ा खुश हो गया कि आज जो है पंजाबी में क्या कहते हैं, दाल लग गए, ये मेरा जो है ये मसला जो है वो आज हल हो गया है। दुकानदार असली नहीं था। वो थोड़ी देर बाद गया तो वो उसके हाथ में वो खजूरें नहीं थी, बल्कि उसके हाथ में मक्खियां थी। वो जो मक्खी काटती है ना वो मक्खी, और उसके हाथों को उसने काट दिए। दौड़ता हुआ आया, कहने लगे आपने मुझे कैसी खजूरें दे दी हैं? तो खजूरें नहीं है, मक्खी हैं। तो मौला अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया जैसे तुमने पैसे दिए थे ऐसा ही माल तुम्हें मिल गया है। मैसम तम्मार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। मैं अर्ज कर रहा था कि आले बैत का खानदान कुरान से जुड़ा हुआ है। एक दफा कुछ गरीब लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे
तो उन्होंने इमाम हुसैन को दावत दी कि आए हमारे साथ खाना खाएं। इमाम हुसैन खाने पर बैठ गए तो एक शख्स वहां से गुजर रहा था तो कहने लगा कि आप क्यों इन लोगों के साथ, इन गरीब लोगों के साथ जिनका मुनासिब लिबास नहीं है, जिनके मुनासिब पेजार नहीं है, बैठे हुए हैं। तो इमाम हुसैन ने फौरन कुरान की आयत पढ़ी, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, खुदा गुरूर और घमंड और तकब्बर करने वालों को पसंद नहीं करता। मैं अगर इनके साथ ना बैठता तो तकब्बर की अलामत होती। उनके साथ खाना खाया, सूखी रोटी तनावल की और फिर उन्हीं गरीबों को अपने घर बुलाकर बेहतरीन खाना अता किया। यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हर अमल कुरान से जुड़ा हुआ है। एक दफा एक कनीज ने आपको एक लाकर फूल दिया तो आपने उसे आजाद कर दिया, तो एतराज करने वाले ने एतराज किया, ये कैसे हो गया कि आपने एक फूल के बदले उस कनीज को आजाद कर दिया। तो कुरान की फौरन आयत की तिलावत फरमाई आपने, वज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन फहय्यु बिअहसन मिनहा। इमाम ने फरमाया कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो उसके सलाम का जवाब बेहतरीन तरीके से दो। जिस तरह आपको कोई सलाम करता है ना जी, अस्सलामु अलैकुम, तो आप फौरन उसे कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब हमारे यहाँ बाज़ लोग इजाफा भी करते हैं, हमारे गांव में जो लोग हैं बाज़ जो ज्यादा यानी दीन से मुतमस्सिक हैं, वो कहते हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व जन्नतुल मकाम व दोज़खुल हराम, जी इस तरह इजाफा कर देते हैं। नहीं, इतना ही कह दे, अगर उसने वैसे सलाम किया आप मुस्कुरा कर जवाब दे दें उसे। और ये भी याद रखें कि सलाम का जवाब जो जिस तरह उसने सलाम दिया उसी तरह जवाब दें। एक गोरे ने आपको कहा है, नॉर्वेजन ने या ब्रिटिश ने या अमेरिकन ने हाय हेलो, आप उसे वालेकुम सलाम कह दें, ये भी सही नहीं है। उसने हाय कह दिया, आप भी हाय कह, जान छुड़वाएं। या बाज लोग हमें सिखाने के लिए कहते हैं, आदमी ने कहा या अली मदद, तो कहता है वालेकुम सलाम, ये भी मुनासिब नहीं। उसने या अली मदद कहा है, आप उसे पीर मौला अली मदद कह दें। यानी वो जो वजन है, जो बैलेंस है सलाम करने और जवाब में, दोनों बरकरार रहे। ये ना हो कि वो गोरे ने आपको, अंग्रेज ने कहा है हेलो तो आप वालेकुम सलाम के, वो समझे मुझे गाली दे दी इसने, ये कोई उल्टा ही मतलब निकल जाए वहां। यानी कुरान ये कह रहा है कि जब तुम्हें कोई सलाम करे तो बेहतरीन तरीके से उसे जवाब दो। मतलब ये है कि उससे बेहतर तरीके से, उसने खाली अगर हेलो किया आप मुस्कुरा कर जवाब दें, उसने अगर खाली हेलो किया तो आप कहें हेलो हाउ आर यू, ताकि पता चले कि मुसलमान बासकाफत हैं, बाअखलाक हैं, खुश अखलाक हैं। हम इन मुल्कों में जो रह रहे हैं, यहाँ रहने का मतलब ये नहीं है कि हम हर वक्त मूड में रहें, नाराज रहें। हराम से बचने का मतलब ये नहीं है कि हम उनको सलाम ना करें, हराम से मतलब नहीं है कि हम उनसे राब्ता ना करें। हम हराम और मुहर्रमात से बचें, लेकिन ये है कि उनसे राब्ते में रहें, क्योंकि बाज हमारे कुलीग होंगे, बाज हमारे हमसाया होंगे, बाज हमारे दोस्त होंगे, बाज हमारे क्लास फेलो होंगे। उनको भी पता चले कि ये खुश अखलाक हैं, बामार्फत हैं, अच्छे लोग हैं। हाँ, इनका मजहब जो है बाज चीजों से मना करता है, इस वजह से ये हराम नहीं खाते, शराब नहीं पीते, सूर का गोश्त नहीं खाते। तो इसका मतलब ये वो ना निकालें कि ये लोग आइसोलेटेड हैं, ये लोग जुदा हैं, ये कोई आसमान से आए हैं और इन लोगों को फिर यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब हमसे मिल नहीं रहे, दूध ये हमारी दुकान से नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद रहे, इसको हराम समझते हैं, लिबास खरीदने को हराम समझते हैं, हमारे साथ बैठने को हराम समझते हैं। हत्ता अगर आप कहीं फॉलो करते हैं इस्लाम को, जिसकी वजह से वो लोग हर्ट होते हैं, तो वहां फौरन माजरत करें। मसला हाथ मिलाने का मसला है, तो हाथ किसी औरत को हम नहीं मिला सकते, हराम है, लेकिन इसकी वजाहत करें, इस अंदाज से वहां पेश आए कि बुरा तासर न मिले, कि वो औरत ये ना समझे कि ये मुझे निजस समझता है, मुझे घटिया समझता है, मुझे लो समझता है, मेरी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता इसलिए मुझे हाथ नहीं मिला। हालांकि जो हम हाथ नहीं मिलाते, अवॉइड करते हैं, हमारे नजरिए में ये रिस्पेक्ट करना है, लेकिन उसको समझाना जरूरी है ताकि जो है वो बुरा तासर न मिले। जिस तरह मुहर्रमात से बचना जरूरी है ना,
जिस तरह वाजिबात को बजा लाना जरूरी है, इसी तरह जरूरी है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे बदनाम हो इस्लाम, जिससे मुसलमान बदनाम हो, जिससे वो हमें नफरत की निगाह से देखें, जिससे दूरियां पैदा हों। जब हमने इस मुल्क में रहना है, इन ममालिक में रहना है, तो हमारी बेहतरीन जो है वो प्लानिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि हम इस्लाम के नुमाइंदे हों। एक आदमी ने बड़ा प्यारा जुमला कहा, दो आदमी आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तबलीग करूं, इन गोरों को इस्लाम की तरफ बुलाऊं, लेकिन मुझे नॉर्वेजन जबान नहीं आती। दूसरे ने जवाब दिया, उसने कहा कि नॉर्वेजन जबान की जरूरत नहीं, आप अपने अमल से तबलीग करें। कून दुआत अन्नास बगैर अलसनतिकुम, इमाम फरमाते हैं कि लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाओ बगैर जबान के, अपने अमल से। पैगंबर ने जो मक्का में, मदीने में तबलीग की, आज पूरी दुनिया में इस्लाम फैला हुआ है, उसमें पैगंबर का अमल ज्यादा था, तकरीरें और खुतबे कम थे। इमाम हुसैन ने भी एक लंबा रूट चुना करबला तक पहुंचने के लिए, ताकि 6 महीने में इमाम लोगों को अपने अमल के जरिए बता सकें कि इस्लाम क्या है और इस्लाम पर किस तरह चलना है और यजीद किस तरह इस्लाम से दूर हो गए। एक सलावत पढ़ें बुलंद आवाज से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक और जो है वो वाकया बयान करते हैं कुरान से मुतल्लिक इमाम हुसैन का, और फिर आगे चलते हैं और फिर इंशाल्लाह मसाइल की तरफ जाएंगे। एक आदमी है, उसका नाम हसाम बिन मुस्तलिक। ये आया, इसने देखते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और ये रिवायत इमाम हुसैन से मंसूब है, इमाम हसन से मंसूब। जब उसने ऐसा किया अमल, तो इमाम खामोश रहे, उसको जवाब नहीं दिया। इमाम ने कुरान की आयत की तिलावत फरमाई, खुजिल अफ़्फ़ा वअमुर बिल उर्फ़ा वआरिज़ अनिल जाहिलीन। इमाम फरमाते हैं कि मैंने तुझे माफ कर दिया और तुम्हें हुक्म देता हूं अच्छे काम करने का, और तुम्हें हुक्म देता हूं कुरान की आयत के मुताबिक कि जाहिलीन से इज्तिनाब करो। यानी इतना उसने इमाम को बुरा भला कहा, तौहीन की, गुस्ताखी की, लेकिन इमाम उसके मुकाबले में कुरान की आयतें तिलावत कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं कि तुझ पर शैतान मुसल्लत हो गया और तुझे गलत किसी ने मेरे बारे में रिपोर्ट दी है। और फिर उसको घर ले आए, तवाज़ो की उसकी। फिर वो इमाम अलैहिस्सलाम के इस अमल से शर्मिंदा हो गया और उसने माफी तलब की इमाम अलैहिस्सलाम से। इसी तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन का वाक़या है। कहते हैं हसीन बिन नुमैर, करबला के वाक़े में जो लोग मेन किरदार अदा कर रहे थे, जो सबसे जिन्होंने जुल्म किया, उनमें से हसीन बिन नुमैर है, हकीम बिन तुफैल है, सनान बिन अनस है, उमर साद है, होली है, हुरमला है। ये लोग मेन किरदार अदा करने वाले लोग थे। हसीन बिन नुमैर उन लोगों में से जिसने लाशों पर घोड़े दौड़ाए थे। वो जब उसने हमला किया मक्का पर, अब्दुल्ला बिन जुबैर के खिलाफ लड़ रहा था, उसे शिकस्त हुई। मदीने में वो पलटा तो मदीने में उसे कोई अपने घर में पनाह नहीं दे रहा था, उसको पनाह नहीं मिल रही थी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा और उसको अपने घर बुलाया, खातिर तवाज़ो की उसकी, उसका ख्याल रखा। सुबह जब जाने लगा तो उसने कहा कि ए मौला, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं कौन हूं। तो इमाम ने फरमाया, मैंने तुझे अच्छी तरह पहचाना है, लेकिन वो तुम्हारा किरदार था और करबला में हम तुम्हारे मेहमान थे, वो तुम्हारा अंदाज था मेहमान नवाजी करने का, और यहाँ पर तू हमारा मेहमान है, ये हमारा अंदाज है मेहमान नवाजी करने का। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सारी जिंदगी रो कर गुजार दी। किसी ने पूछा कि मौला आप इतने रोते क्यों हैं? कहा हजरत याकूब का यूसुफ गुम हुआ था तो सारी जिंदगी हजरत याकूब रोते रहे। इस शख्स तुझे पता नहीं, मैदान करबला में मेरे 18 यूसुफ गुम हो। मदीने की गलियों में जब भी इमाम निकलते थे
कसाब कसाई गोश्त को इमाम को देखते ही गोश्त को छुपा दिया करते। पूछा गया इसकी क्या वजह है? कहा जब भी इमाम की निगाह कटे हुए गोश्त पर पड़ती है तो अपने बाबा की पामाल लाश याद आ जाती है, इमाम को याद आ जाती है। इमाम अलैहिस्सलाम जब भी सारा साल रोजा रखते थे, जब इफ्तारी का वक्त आता ना, इफ्तार सामने रखी होती थी, इमाम से देख कर रोना शुरू कर देते, पानी को देख कर रोना शुरू कर देते। कहा मौला क्यों रो रहे हैं? कहा ये वो पानी है जिससे मेरे बाबा को मना किया गया, नहर फरात बहती रही अपने आबोताब पर, लेकिन मेरे बाबा को किसी ने पानी नहीं दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने सवाल किया, ये अपना रसूलुल्लाह आपने सारी जिंदगी रोकर गुजार दी, क्यों रोकर गुजार दी? और वो कौन सा वाक़या है जो आपको रुला रहा है? इमाम ने कहा शाम अशाम अशाम। रावी कहते मैंने सवाल किया, आपके भाई की जवानी, अली अकबर की जवानी तो करबला में लुटी, आपके बाबा को कौन खंजर से करबला में शहीद किया गया, अली अस्कर को करबला में शहीद किया गया, आपके भाई के कासिम की लाश के टुकड़े करबला में हुए, फिर आपने क्यों कहा अशाम अशाम अशाम? कहा, इमाम ने जवाब दिया अमीर अल मोमिनीन के एक वाक़े से। अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक दफा अपने असहाब के दरमियान बैठे हुए थे, असहाब से पूछने लगे, मेरे सहाबियों, मेरे जानिसारो, इंसान के लिए सबसे मुश्किल वक्त कौन सा है? किसी ने कहा किसी की माँ मर जाए, किसी ने कहा माँ का जवान बेटा मर जाए। तो अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि मुश्किल वक्त नहीं है, इंसान फातेह खैबर हो, फातेह खंदक हो, लेकिन उसके घर को आग लगाई जाए, उसकी जोजा पर जुल्म किया जाए, लेकिन इस्लाम की खातिर वो ना बोल सके, ये इसके लिए मुश्किल है। कहा मेरे लिए भी शाम का मरहला मुश्किल था, शाम के मरहले में मेरी इज्जत का सवाल था, मेरी गैरत का सवाल था। कहा मौला शाम का वाक़या तो बड़ा लंबा है, वो कौन सा खास वाक़या जो आपको रुलाता है, हर वक्त आप रोते रहते हैं? कहा वो वाक़या यजीद के दरबार का है, जब एक मलऊन ने मेरी बहन सकीना की तरफ इशारा किया और कहा यजीद मैं इस बच्ची को अपनी कनीज बनाना चाहता हूँ। मोमिनी ने कहा क्योंकि मुसलमान को कनीज नहीं बनाया जा सकता, इन मुसलमानों ने हमें मुसलमान तक न समझा, इसलिए ये शख्स कह रहा था कि मैं इस बच्ची को अपनी कनीज बनाना चाहता हूँ। अल्लाह लानतुल्लाह कौम ज़ालिमीन। सयअलमुल्लज़ीना यमुनक़लिबून यमकलम। खुदा इस कलील सी हाज़िरी को कबूल मंजूर फरमा, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से बचने की तौफीक अता, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजिल फरमा। या अल्लाह ये मोमिनीन यहाँ मौजूद है, मोमिनात यहाँ मौजूद है, बच्चियाँ यहाँ मौजूद हैं, इनकी तौफीकात में इज़ाफ़ा फरमा। या अल्लाह ने अच्छा मुस्तक़बिल अता फरमा, इन्हें इम्तिहानात में कामयाबियाँ अता फरमा। या अल्लाह ने दीनी दुनियावी मैदान में अता फरमा। या अल्लाह तू गफूर रहीम है, रहम करने वाला, करम करने वाला, हाज़रीन पर रहमों करमों की बारिश फरमा। या अल्लाह तू गफूर रहीम है। या अल्लाह ये इस मजलिस का सवाब, इस महफिल का सवाब, इस पढ़ाई का, इस नौखानी का, इस मरसियाखानी का सवाब हाज़रीन के लाहिकीन मरहुमीन मरहुमात को बचा, उनकी मंजिल आसान फरमा, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा, उनके दरजात को बुलंद फरमा। एक दफ़ा सूरह फातिहा और सूरह इखलास की तिलावत फरमा।